प्यार होना इन टर्म्स ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस मैं बुरा नहीं मानता. Sex is like in people's mind, you tell them that is a sin, and then they live with that guilt. दुनिया में पत्नी याद आ रही थी, बच्चे याद आ रहे थे, पैसा याद आ रहा था, कुछ और याद आ रहा था, गॉड याद आ रहा था, मतलब कोई गॉड फॉड याद नहीं आ रहा था. सेक्स एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो इंसान की ज़रूरत है. Namaste Bharat. Welcome to our second podcast, the Happiness Podcast. Myself Saurav, and I have a friend visiting from UK. We live in London, and a few months ago we were observing that there's so much problem going in the world. The world is in recession. There's wars happening between Russia and Ukraine. People have everything, but still they are very unhappy. There's a big rise in problem of mental health, suicide. And then the whole world is looking towards Asia and India for happiness. There's people are asking what is there in that part of the world where like 1.4 billion people live, and still they are much more happier or much more satisfied than other part of the world. And then we decided to make this journey to India to go and discover ourselves what is it. And we heard a lot about this ashram. There's an ashram in Vrindavan, it's called Anandam Dham. Anandam stands for happy, so it's a happy place. And the spiritual leader who heads this ashram, Sadhguru Sri Riteshwar Ji, we have heard a lot about him in terms of like he's a very, very outspoken, very, very popular among youth, a big influencer among youth and politicians, and a very, very big person for social change. And we have been observing his video, and we see he's always been very, very happy and very, very content. And the people who have visited him, they talk the same about it, and they recommended you should go and talk to him once. So we ended up coming to India. Then in India, we ended up coming to Vrindavan, and then we ended up in the ashram with Guruji. So today's podcast, we'll find about a little bit more about his personal life and how he manages himself and how he manages such a big ashram which has people all over India. I'll give the mic to my friend Elaine. She's a very popular social worker in Scotland, UK, and then she can introduce herself, and then she has a couple of questions to Guruji, and we can kickstart the podcast today. So, Elaine. Hi, thank you. So my first question to you is, when did you decide to become a guru, and why? What was that point? So, Elaine, उन्होंने पूछा गुरुजी से कि जीवन में ऐसा कौन सा वो वक्त था या समय था जब वो अपनी जीवन धारा छोड़ के गुरु बनने की ओर प्रग्रसित हो गए. तो गुरुजी, ये सवाल है. Exactly, the journey of a good human being is, so many people call it gurudom. But guru means problem to solution. How to get solution? Solve your questions, solve your problems, solve your life. मेरा स्पष्ट ऐसा मानना है कि गुरु कोई बनता नहीं है. गुरु का अर्थ होता है जिसने अपने जीवन के समस्त प्रश्नों के उत्तर ढूंढ लिए हों. और उत्तर ढूंढ लिए हों मतलब जो वर्तमान में प्रश्न हैं उसके उत्तर उनके पास हैं. कल जो वर्तमान उनके पास आएगा उसके भी उत्तर को ढूंढने का वो साउंड माइंड, वो साउंड थॉट और वो साउंड प्रोसेस उनके भीतर में है कि वो कल भी जो वर्तमान होगा, क्योंकि वो कल में जीते नहीं. जो गुरु हैं वो कल में नहीं जीते, वो वर्तमान में जीते हैं. तो वर्तमान में देश काल पात्र का मतलब है प्लेस, पर्सन एंड टाइम. अकॉर्डिंग टू प्लेस, पर्सन एंड टाइम वो डिसीजन लेते हैं कि कौन सा निर्णय, कौन सा कार्य किस व्यक्ति के साथ कैसे कहाँ करना है, जिससे उनके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान मिलता रहता है. तो गुरु बनना कोई कैरियर नहीं है. जस्ट लाइक अ टीचर, engineer, a doctor, IAS, IPS in India, ये कोई करियर नहीं है, ये कोई पढ़ाई नहीं है, ये जीवन की विद्या है. द स्टडी ऑफ लाइफ. तो इसलिए गुरु बना नहीं जाता. जो एक सच्चा शिष्य होता है,
जो फॉलोअर होता है, जिसने 100% किसी ग्रेट पर्सनालिटी को, किसी ग्रेट पर्सन को और ग्रेट थॉट्स को फॉलो कर लिया, वो उसी क्षण गुरु हो गया। गुरु बनते नहीं, गुरु जन्म लेते हैं, भीतर से गुरु जन्म लेते हैं। गुरु बनाया नहीं जाता। शिष्य बनना आपने सीखा होगा कि आप उनके शिष्य हैं, पर आप गुरु कब बने ये नहीं हो सकता। जब आप चेतना में होंगे, परम बुद्धत्व में होंगे। पहले वो गौतम सिद्धार्थ थे, उनका नाम था गौतम सिद्धार्थ। एंड देन उन्होंने बहुत सारी चीज़ें खोजी, ढूंढी, ये दुख क्यों है, ये तकलीफ़ें क्यों हैं, ये मृत्यु क्या है, ये बुढ़ापा क्या है। और फिर उस बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर जब वो कनेक्ट कर पाए इस विराट ब्रह्मांड के साथ, और उन्होंने कनेक्ट किया कि जो पूरे ब्रह्मांड में हो यहाँ भी है, बस उसी क्षण उनको बुद्धत्व उपलब्ध हो गया, तो वो बुद्ध बन गए। तो सिद्धार्थ से बुद्ध की यात्रा अर्थात अज्ञान से ज्ञान की यात्रा है, और क्षुद्र से विराट की यात्रा है, विशाल की यात्रा है। So what Guruji said is basically, and it's one of the answers that will shock a lot of people, which is you don't become a guru all of a sudden. Becoming a guru is not a career. It's not a gurudom. It's a process. It's a process where someone who is in the quest, who is in the spiritual life, answers all the question and answers all the question of his current life. But also, the guru is someone who they don't live in future, they live in present. But based on time, place, and people in your life, in future they can anticipate what situation will come, and those situations will demand certain questions, certain decisions. So he can predict that when that situation comes, what is the way of life, what should you take as a decision, what should be your answer. So once you have led that path and that path, you become a guru. Again, it is not a career, it is something which is a journey. And then basically once you are in that journey where you have answered, first of all, as he said, answered all the life's question that the life throws at you, and are also able to answer the question that life will throw at you in the future, you come to this journey. And second thing he touched upon, Buddha. So Buddha became, before he got enlightened, his name was Siddharth. And Siddharth, he went on this journey to understand what is the misery, what is the cause of misery in life, what is the cause of death, why are people suffering. And then when he went on his journey, and then he decided to contemplate. And then from Siddharth, he became Buddha when he had all the answers. And that's what we call as enlightenment. So Siddharth became Buddha, and that's a journey towards Buddhatva. So Guruji, what he says again is like there's not one instant where I'm like I became a guru. It's a quest, it's a curiosity to answer the questions of life, and then as you go through it, you transform into something that we call as a guru. And then because he has answered all the questions for himself, he throws that light in our life so that like we go from darkness, because darkness is basically unanswered questions, or like why we suffer in life. So I think does that answer your question? My next question is, a lot of people struggle to be in the present. They're stuck in the past. They're stuck in terms of things that have happened to them in the past, or they're just thinking ahead about the future. And people have these sort of busy minds. So as a guru, I'd like to hear what advice you would give to people that are watching this podcast that feel like that. तो इलेन ने जो सवाल पूछा वो ये है कि ये सबको, जैसे हम बात करते हैं, गुरुजी बोलते हैं प्रेजेंट में रहो, वर्तमान में रहो, और ये ज्ञात सबको है, लेकिन इंसान की जो नेचर होती है, जो फितरत होती है, या तो वो पास्ट में रहते हैं या वो फ्यूचर में रहते हैं, और ये जानते हैं कि प्रेजेंट में रहना है, ये उनके लिए लाभदायक है, तो उसको रहे कैसे? Habit is the second nature. In Bhagavad Gita, Sri Krishna told Arjuna, practice what I am saying. And जब उन्होंने कहा अर्जुन को कि अर्जुन कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है, मैं जो कहता हूँ वो यूनिवर्सल ट्रूथ है,
और यूनिवर्सल ट्रूथ को तुम्हें प्रैक्टिस करना होगा। एंड प्रैक्टिस करते करते जो नेचर अभी तुम्हारे अगेंस्ट है, जो नेचर तुमने बना लिया है, वही नेचर तुम्हारे सपोर्ट में आ जाएगा जब तुम यूनिवर्सली कनेक्टेड हो जाओगे और यूनिवर्सली जो चीज़ें राइट हैं, जो सही पथ पे जाती हैं, उनको मानने लगोगे, तो तुम्हारे सारे प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगे। वी नो, हम जानते हैं कि ऐसा करने से ऐसा होगा। हम जानते हैं हमें भूख लगी है और हमें ही कुक करना है और हमें ही खाना है, लेकिन हम उसको कर नहीं रहे हैं। तो पक्की बात है कि जब कर नहीं रहे हैं तो हमारी भूख मिटेगी नहीं। वैसे ही अगर लाइफ के कुछ हंगर्स हैं, कुछ तकलीफ़ें हैं, कुछ भूख है, और रियल भूख अगर है तो हम मिटाने का अवश्य प्रयत्न करेंगे। पर लगता है कि हमारे काम चल जा रहे हैं, इधर उधर करके हम रो के हंस के जी ले रहे हैं। बहुत गहरी खोज हमारी नहीं है अभी, इसलिए हम कहते हैं कि हम चेंज नहीं कर पा रहे हैं। पर जिन्हें गहरी खोज थी उन्होंने अपने आप को पूरा चेंज कर लिया। मुझे लगता है वो प्रॉब्लम भी अभी उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में, जिस प्रॉब्लम के आ जाने के बाद सॉल्यूशन मस्ट हो जाता है। अभी प्रॉब्लम एंड थोड़ा सॉल्यूशन, सो इंग्लिश जैसे चलता है वैसे हमारी ज़िंदगी चल रही है, सो एंड सो चल जा रहा है, कभी खुशी कभी गम। लेकिन अगर ऑलवेज बी हैप्पी का नारा हमारे जीवन में सक्सेसफुल करना है तो हमें प्रॉब्लम के भी उस गर्त तक पहुंचना होगा, तह तक पहुंचना होगा। जो व्यक्ति अपने आप को चेंज नहीं कर पा रहा है, दैट मीन्स अभी उसको प्रॉब्लम नहीं है। और अगर वो प्रॉब्लम नहीं है तो अच्छी बात है, वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी रहा है। पर जिन्हें प्रॉब्लम्स हैं, बुद्ध की तरह, सिद्धार्थ की तरह, वो बुद्ध बन के वापस लौटते हैं। जिन्हें प्रॉब्लम हैं, राम जी की तरह, वो सीता को वापस लेके लौटते हैं। भगवान श्री कृष्ण की तरह जिन्हें प्रॉब्लम्स हैं कि इस पृथ्वी पर ये प्रॉब्लम है, वो फिर उसका सॉल्यूशन लेके लौटते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी प्रॉब्लम गहरी नहीं हुई है, और मैं चाहता हूँ भी कि गहरी ना हो। आप लाइट प्रॉब्लम से ही लाइट लाइफ को लेके निकल जाएं। लेकिन जिस दिन बहुत गहरा प्रॉब्लम होगा, उसी दिन बहुत गहरी खोज से वो गहरा सत्य, जो स्वयं को इनलाइटन तो करता ही है, आपके संग मात्र से ये सारी दुनिया इनलाइटन होने लगती है, आपके संगति से। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम चेंज नहीं कर पा रहे हैं, दैट मीन्स ये हमारा नीड नहीं है। एक छोटी सी बात है, मथुरा के रेलवे जंक्शन पे एक बहुत पुरानी बात है, ये 30 साल पुरानी बात। मथुरा के रेलवे जंक्शन पे एक ट्रेन आती है। उस समय न फ्रिज थे बहुत ज़्यादा, न कुछ था। एक आदमी, एक छोटा सा बालक, ऐसे ट्रे में ग्लास में पानी लेकर के पानी 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 वाटर 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 कर रहा था। अब वाटर वो उस समय 10 पैसे का था, 5 पैसे का था, जो भी था, लोग फटाफट पैसे देते, पानी पीते एकदम। और 3rd क्लास के डब्बे होते थे, 1st क्लास का डिब्बा था नहीं तो उस समय में, तो पानी पीते। एक सेठ जी थे वहाँ पर, रिच मैन, उन्होंने बुलाया और बोला कितने का है? बोला 10 पैसे का। अरे बाहर तो 5 पैसे में मिलता है। तो वो सुना भी नहीं और दूसरी तरफ चला गया। तो एक उस बिजनेसमैन ने फिर दोबारा बुलाया और बुला के बोला कि तुम अच्छे बिजनेसमैन नहीं हो, तुम्हें हमसे आर्ग्यू करना था, बात करना था, मैं खरीदार था। उस बच्चे ने कहा मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, जिसको प्यास होगी ना, इस दोपहर में जिनको जिनको प्यास थी, उन्होंने एक एक मिनट में 10 पैसे फेंके और पानी पिया। और ऐसे सैकड़ों लोग अभी यहाँ पर हैं, मैं क्यों टाइम खोटा करूँ, मैं ग्रेट बिजनेसमैन हूँ। और एक दिन वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना और सेठ ने लिखा कि मैं उस पानी बेचने वाले बच्चे से बिजनेस का ट्रिक सीखा कि वास्तव में जब नीड होती है तो व्यक्ति फिर ये नहीं देखता कि मुझे क्या पे करना है, क्या चुकाना है। जब नीड थी सिद्धार्थ की तो उन्होंने अपने राज्य त्याग दिए, अपना राजकुमार, वो प्रिंस थे, प्रिंस छोड़ दिया, पत्नी छोड़ दिए, बच्चे छोड़ दिए, क्योंकि नीड थी। उससे भी बड़ा प्रश्न उनके जीवन में था, ये बुढ़ापा मुझे नहीं चाहिए, और चाहिए तो बिना दुख वाला चाहिए। ये मृत्यु मुझे नहीं चाहिए, अगर मृत्यु चाहिए तो बिना दुख वाला चाहिए। ये ज़िंदगी मुझे ऐसी नहीं चाहिए जो वर्तमान में है, मुझे इससे भी एनलाइटेंड लाइफ चाहिए। इसके लिए वो निकल पड़े, इसलिए उन्होंने इतनी बड़ी कीमत पे की। यद्यपि अगर कोई सिद्धार्थ से पूछे तो कहेंगे मैंने तो कुछ नहीं दिया, मैंने इतना सा दिया और मैंने बहुत पाया। मैं एनलाइटेंड हो गया, मैं बुद्ध हो गया। मैंने बहुत साधारण चीज़ें छोड़ी। और छोड़ते किसको हैं? छोड़ना और पकड़ना किसको कहते हैं? आप 10 रुपये पे करते हैं तो आपको पता है कि इस 10 रुपये में अभी मेरी नीड है, वो 1000 रुपये की भी आपकी नीड है जो 10 रुपये में पूरी हो रही है। आपको जब ज़रूरत होती है तब आप कोई चीज़ छोड़ते हो, ऐसे कोई कुछ छोड़ता नहीं। तो आपके जीवन में अभी ज़रूरत शायद बहुत गहरी नहीं है, इसलिए वो चीज़ें छूट नहीं पा रही हैं।
या अडॉप्ट नहीं हो पा रही हैं, जिस दिन गहरी प्यास जगेगी उस दिन डिस्कवरी चैनल की तरह वाइल्ड वर्सेस मैन आप कोई भी जल उठा करके पी लोगे, किसी भी कीमत पर पानी पीना स्वीकार करोगे। मुझे लगता है प्यास गहरी होनी जरूरी है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा हमारे शास्त्र में कहा गया, हमारे वेद सूत्र में कहा गया, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, जिसके जीवन में ब्रह्म के प्रति जिज्ञासा हो जाए, मुझे ब्रह्म कौन है, मुझे चाहिए, मुझे खुशी चाहिए, मुझे विराटता चाहिए, तो मुझे लगता है कि प्यास जिस दिन गहरी हो जाएगी, पानी खोजना भी नहीं पड़ेगा, पानी उपस्थित हो जाएगा। हाँ सर। I'll just summarize that. That's a very good answer. In terms of what Guruji said earlier to your question is, a lot of people know that we want to stay in present, but they live in past or future. So first he said that it's practice. Practice is one of the key things in Mahabharata when Arjuna and Krishna had a very similar conversation, that how will I be able to do anything? And he said that the answer to everything is practice. You know, when we say like practice makes man perfect, it's like keep practicing, keep practicing. And then he touched upon something very important. Second is basically when people have issues and problems coming in life, and then, you know, at surface you remove the problem, but you don't go deep. And the problem keeps coming back because you are scared to go too deep, you know. Just like allopathy pills. Yeah, just like allopathic pills, because what it does, it removes temporary. You have fever, it will take fever off, but it does not go deep and remove the cause. So what he said, till you have that, the desire and the thirst to go deep down to understand the problem of life, you will always suffer, because what you're doing is you're putting a temporary fix. And then again he touched upon Buddha and Siddhartha. So Siddhartha, by the way, Siddhartha was a king. He came from a royal family. He was married. And then in quest of spirituality to answer the questions of life, he left all of that. He left all of that and started a life with like nothing. But then after going very deep, when he got enlightened, he found the solution. And then when you compare that, oh my God, I've left everything and I've left everything for this. It's a big sacrifice. But when you think that people who have everything in life, they have money, married, like all the cars, all the materialist thing, and still they suffer. But when you go that deep, when you find the answer that you get is bigger than any other solution that you have. Same with Krishna as well. People have gone deep, and once you reach that depth, that will force you to become that person who stays in the present and who has answered that. And once you become that person, you become the source of light for other people as well. In one line, if it's your need, you will achieve. If not, you can't. अगर ज़रूरत है तो आप उसको अचीव कर ही लोगे। अभी ज़रूरत बहुत लाइट है, काम चल रहा है, तो आप प्राप्त नहीं करना चाहते। तो ज़रूरत गहरी होनी चाहिए। अभी ज़रूरत गहरी नहीं है। रामकृष्ण परमहंस, द गुरु ऑफ विवेकानंद, one people came and I want to see God, I want to see God, I want to see God. बोला ओके कम हियर। वो ले गए गंगा जी में, बीच नाव में। उस आदमी का ऐसे उन्होंने नेक पकड़ा और पानी में डुबो दिया, और वो ऊ करने लगा। लास्ट टाइम में लास्ट ब्रीथ जब जाने लगा तो छोड़ा, तो निकल गया। ओ आर यू मैड, आर यू मैड, व्हाट आर डूइंग? मैं गॉड देखने आया हूँ, मुझे मार देगा, मेरा जान मार देगा। तो रामकृष्ण परमहंस मुस्कुराते हुए पूछे, जब अंदर थे तो कैसा लग रहा था लास्ट टाइम में? अरे बोला कैसा लग रहा था? दुनिया में पत्नी याद आ रही थी, बच्चे याद आ रहे थे, पैसा याद आ रहा था, कुछ और याद आ रहा था, गॉड याद आ रहा था? बोला कोई गॉड फॉड याद नहीं आ रहा था, एक ब्रीथ, एक सांस मिल जाए कहीं से, बस ये सोच रहा था, एक सांस मिल जाए। बोला बस जस्ट ऐसी ही व्याकुलता, ऐसी ही नीड जब जीवन में जरूरत होगी कि वेयर इज गॉड, तो उसी दिन गॉड तुम्हारे सामने होंगे। पर तुम्हारी नीड अभी फेक है, तुम्हारी नीड अभी जैसे तैसे है, काम चल रहा है, इसलिए गॉड तुम्हारे पास नहीं है। एंड मैं काली से टॉक करता हूँ, माँ काली से, क्योंकि मेरी नीड है, उनके बिना मैं जी नहीं सकता। तो नीड जितनी गहरी होगी, प्राप्ति उतनी जल्दी होगी। I'll just summarize that again. So basically what happens right now is, because the need of most of the people, you and me, is not that deep. You know, we are just like, the need is not that deep, the problem is not that deep. The day
when need becomes that I want to get it, I want to find it, I want to get enlightened, I want to understand God, then the need comes to that, then you will. The need is not right now. That's why you are just like gliding through the life with all the suffering and stuff. I'll ask you to move to the next question, please. So my next question is, right now, if there was one thing you could change in this world, what would it be? इनका जो सवाल है कि अगर आज दुनिया में कुछ ऐसा एक चीज़ है जो आप बदलना चाहेंगे, एक ऐसा चीज़, वो क्या होगी? अगर मेरे चाहने से वो हो जाए, या जो मैं चाहता हूँ जो हैप्पीनेस का थॉट प्रोसेस है वो लोगों तक पहुँच पाए प्रॉपरली, और जिनकी नीड गहरी होगी वो उसको एक्सेप्ट कर पाएँ। अभी ऐसा हो रहा है कि जिनकी नीड है भी, पर प्रॉपरली उन तक वो बातें नहीं पहुंच पा रही है। तो मुझे लगता है ऐसा कोई एनलाइटेंड पुरुष, ऐसा कोई आदमी जो उस थॉट प्रोसेस को, उस की को जन जन तक, 8 अरब लोगों तक पहुंचा सके, जिनकी नीड होगी वो ले लेंगे। तो मैं यही चीज़ चाहूँगा कि ये चीज़ें लोगों तक पहुंच जाएं, मेरी यही चाहत है। एक चीज़ जो सारी दुनिया को बदल सकती है, क्योंकि जब वो पीपल जिनको नीड होगी और वो अपनी ज़िंदगी को बदलेंगे तो उनके साथ साथ हज़ारों लाखों लोगों की ज़िंदगियां बदल जाएंगी। एंड दिस इज़ अ रियल नीड ऑफ द प्रेजेंट वर्ल्ड। I think it's what Guruji answered was very much similar to what we were talking earlier, that if we had to change one thing is the thought process to attain happiness. And because, you know, there are 8 billion people in the world, it's like once people have that need, you know, and once they get a solution on how to be endlessly happy, that's one of the things that, like, once the solution goes, that will change, bring endless happiness to the entire world. One Buddha, the 8 to 10 countries, one Jesus, how much countries, just like Muhammad and Lord Rama, Krishna, and our saints, enlightened people, who they makes billions and billions people happy. So I like to change the thought process of people on the basis of happiness. That's a good answer. Thank you. Yeah. So my next question is more personal. It's about you, and it's about love, because my understanding is that you have a big fan of women. So have you ever considered marriage? Would it be a love marriage, or would it be an arranged marriage? And if you say why. प्रश्न बता देता हूँ। तो इलेन ने एक पर्सनल सवाल पूछा है गुरुजी से कि जैसे गुरुजी की फीमेल फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, और उसका ने एक पूछे हैं कि क्या गुरुजी को कभी, जिसको हम बोलते हैं, प्यार हुआ है किसी फीमेल से, और दूसरी चीज़, अगर शादी की बात आई तो क्या वो शादी करेंगे, और शादी अगर करेंगे तो लव मैरिज या करेंगे या अरेंज मैरिज करेंगे। और एक उसका कारण ये है कि ये जहाँ से आती हैं वहाँ अरेंज मैरिज का कॉन्सेप्ट होता नहीं है, ये बहुत ही एशियन या भारतीय कॉन्सेप्ट है, तो ये इस पर चर्चा होती रहती है हमारी। गुरुजी, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है और बहुत लाइटर भी है। जीवन में प्रेम और काम में अंतर समझना होगा। लव एंड लस्ट, LOVE एंड LUST, इन दोनों में बहुत अंतर है। हमारा जो अपना व्यक्तिगत अनुभव है, या जो शास्त्र कहते हैं प्रेम में बलिदान होता है, हम दे के खुश होते हैं। मेरी हैप्पीनेस किसी को देने में है, वो प्रेम है। एंड लस्ट लेने में है, उसको जब मिलता है तब वो हैप्पी होता है। तो भारतीय दर्शन जो है, भारतीय धर्म है या यूनिवर्सल धर्म है, वो लव में बिलीव करता है, जहाँ सब कुछ दे देने के बाद भी अपनी मस्ती, अपना आनंद बचा रहता है और बढ़ते रहता है। और एक रावण है जो सब कुछ पाना चाहता है, दूसरे की पत्नी उठा ले आता है, दूसरे का सोने का लंका छीन लेता है, बट वो कभी हैप्पी नहीं रहता, क्योंकि वो पूरी दुनिया, पूरी यूनिवर्स को अपना बनाना चाहता है। मेरा है, मेरा है, मेरा है। एंड लव में वो ऑलवेज, ये सब आपका है, ये सब आप। हम जिसको प्रेम करते हैं,
बट प्रेम करना एक अच्छे आइडियल से होता है, लिविंग आइडियल, ग्रेट आइडियल से। अगर आपने किसी ऐसे से प्रेम कर लिया जो आपसे निम्न है, छोटा है, जिसके विचार छोटे हैं, तो लस्ट हो गया और आपने अपने से हायर थॉट ऑन द बेसिस ऑफ हैप्पीनेस, सबके हैप्पीनेस के बेसिस पे जो जीता है, अगर उससे आपका अटैचमेंट है तो इसको लव कहते हैं। और जो केवल खुद के लिए जीता है, सक्सेस एट एनी कॉस्ट, लाशों के ऊपर भी पांव रख के वो पैसे कमाना चाहता है, वो बड़ा बनना चाहता है, अगर उससे अटैचमेंट हुआ तो आप लस्ट में गिर गए एंड आप एक क्रिमिनल की तरह व्यवहार कर रहे हैं। तो लव शब्द बहुत प्यारा है और प्रकृति ने बनाई है मेल एंड फीमेल, और मेल एंड फीमेल के बीच एक भौतिक रासायनिक प्रतिक्रिया जो शरीर के भीतर में सबकी होती है। तो वो चाहे आप हों, ये हों, कोई भी हो, स्टूडेंट हैं, जब आपके पास पूरा ज्ञान नहीं है तो सबका अट्रैक्शन, और ज्ञान होने के बाद भी अपना काम करता है, हार्मोन्स अपने काम करेंगे, वो अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन को एग्जैक्टली लव कहेंगे कि नहीं कहेंगे, विचार इस पर करना चाहिए कि क्या ये सिर्फ बॉडी की नीड है। मतलब वन थिंग आई कैन से, द लव को मैं 3 भाग में क्लासिफाइड करता हूँ, द डिजिटल लव, फिजिकल लव एंड आइडियल लव। तो वी ऑल आर इन आइडियल लव। आइडियली मीन्स पूरा यूनिवर्स हैप्पी, मैं हैप्पी, सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं एंड नथिंग इज सीरियस हियर, यहाँ कुछ भी सीरियस नहीं है इस वर्ल्ड में, और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसके लिए आपको कभी ग्लानि करनी पड़े, कोई ग्लानि का भी विषय नहीं है। नॉलेज नहीं है वर्तमान में, मैंने ये काम किया, दैट्स नाइस, मेरे पास नॉलेज नहीं था, आज मेरे पास नॉलेज है, अब मैं ये नहीं कर रहा हूँ, दैट्स नाइस, ईजीली। तो बीजी का मीन्स, मेरे गुरु ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी, बीजी मीन्स बी ईजी, बी ईजी मीन्स बीजी, आप जितने ईजी हो उतने बीजी हो। हम तो बिजी होते हैं, मतलब हमारी लाइफ बहुत हेजी हो गई, हेजी लाइफ को बिजी नहीं कहते, बी ईजी, आराम से जियो, आराम से रहो। तो अगर आप पर्सनली ये पूछना चाहती हैं तो मैं भी बताना उचित समझता हूँ। फेयर स्कूल लाइफ में ऐसे अट्रैक्शंस हुए हैं जो अच्छे लगते हैं, सबको अच्छे लगते हैं, बट स्लोली जब आप इसको समझते हैं, जानते हैं, ऐसा नहीं कि इससे दूर हटना है, इससे भाग जाना, ये पाप है। ये पाप बोल के ही तो आधा भारत या पूरा भारत, ये हमारा, ये कम से कम भारत में लोग आधे समय ग्लानि में रहते हैं, इसको लेके आधी ज़िंदगी ग्लानि में रहती है। ये सीन कैसे हो सकता है, ये पाप कैसे हो सकता है? मैं भी प्रश्न पूछना चाहता हूँ लोगों से, क्योंकि बहुत डिफरेंट तरीके की बातें लोग करते हैं। हमारे धर्म में भी डिफरेंट तरीके के लोग हैं, डिफरेंट ऋषि हैं, डिफरेंट गुरुज हैं, वो डिफरेंट बातें करते हैं। कहते ये पाप है, इससे दूर हटो, ये नाश कर देगा, इससे दूर हटो। बट इज़ इट ईजी कि इससे पास दूर हटो, ये करो? इसको ईजी क्यों नहीं लेते, इसको सहजता से क्यों नहीं लेते? अब मैं एक प्रश्न आपसे करता हूँ। 10 इंद्रियां बोलते हैं हम, 10 इंद्रियां, तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। माउथ है खाने के लिए, जिह्वा, आँख देखने के लिए, ईयर टू हियर, नोज तो स्मेल, ऐसे ऐसी चीज़ें हमारे पास हैं। तो आपको कोई चीज़ अच्छी लगी खाने में, बर्गर, पिज़्ज़ा और एप्पल, और आपने उसको खाया, तो इसमें ग्लानि है, पाप हो गया आपसे? आपको भूख लगी, आपने खाया, पाप कर दिया? नो, पाप तब होगा जब आपने किसी जीव को मार के खाया, ज़बरदस्ती खाया, फिर वो चीज़ आपके लिए भी हार्मफुल है, वो आपके बॉडी के लिए हार्मफुल है, आपके बॉडी को डिस्ट्रॉय करेगा, रोगी बनाएगा, तब उसको सीन के रूप में ले सकते हैं कि ये सीन है। और सीन इसलिए बोला जाता था, पाप इसलिए बोला जाता था कि लोग उससे डरें और उससे अलग हटें। डरते रहें और छुप के करते रहें, ये तो महापाप हो गया। बल्कि उसको जानें, समझें। अगर जानने के बाद कुछ करते हैं तो वो पाप नहीं हो सकता है। मेरा ऐसा मानना है कि जब खाने में कोई तकलीफ़ें नहीं हैं, अच्छे सॉन्ग सुनने में कोई तकलीफ़ नहीं है, गुलाब को स्मेल करते हैं कोई तकलीफ़ नहीं है, तो फिर वो भी एक इंद्रिय है, बॉडी नीड्स। अगर किसी का किसी के साथ संबंध है और वो अच्छा फील करते हैं, तो इतना वरी क्यों, इतनी तकलीफ़ें क्यों, इतने सवाल क्यों, इतना हाइड क्यों किया गया इसको? भारतीय धर्म, सनातन धर्म,
हिंदू धर्म में वात्सायन एक ऋषि हैं जिन्होंने काम शास्त्र लिखा। काम शास्त्र, काम का अगर सीधा अर्थ बताएं ना, सेक्स, सेक्स, सेक्स के ऊपर उन्होंने इतना बड़ा ग्रंथ लिख दिया, पूरा पूरा सब कुछ बता दिया कि है क्या, इसको करना कैसे चाहिए। भगवान शिव को अगर पूरा पढ़े, तंत्र विद्या कोई पढ़े तो शायद समझ पाएगा। हमारे यहाँ चीज़ों को सीन नहीं माना गया, पाप नहीं माना गया। वो जो अनफोल्ड हैं, जो फोल्ड हैं उनको अनफोल्ड किया जा रहा है, जो छिपे हुए हैं उनको बाहर लाया जा रहा है। अगर आप किसी चीज़ को जान कर करते हैं तो आपको पता है, अनजाने में जहर खा गए मर गए, पर आप जानते हैं ये पॉइजन है, ये मिल्क है, ये शराब है। और ना आप चुनिए, आपको क्या चुनना है, आपके ऊपर है, क्योंकि उसके रिएक्शन आपके जीवन में होंगे। इसलिए प्यार होना इन टर्म्स ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस मैं बुरा नहीं मानता, अच्छी बात है, किसी के प्रति लगाव हो। बट हमारा जो डीप हिंदुइज्म है, हमारा जो सनातन की विद्या है, यह रियल नॉलेज को सनातन विद्या कहते हैं, रियल नॉलेज को सनातन नॉलेज कहते हैं। जो रियल है, जो फैक्ट है, जो ट्रूथ है, उसको ही सनातन कहते हैं। सनातन कोई सेक्ट नहीं है एक कि ये सनातनी है, ये गैर सनातनी है। जो भी ट्रूथ को लव करते हैं, जो भी हैप्पीनेस को लव करते हैं, जो बिलीव करते हैं प्रॉस्पेरिटी में, जो बिलीव करते हैं बहुत विस्तार में, उनको ही सनातनी कहते हैं। सनातन का मतलब कभी भी संकुचित, संकीर्ण, कोई एक छोटा सा सेक्ट नहीं हो सकता। 8 बिलियन जो पीपल हैं वो सब सनातनी हैं। क्यों? हम पूरी वसुधा को अपना परिवार मानते हैं। वी ऑल आर फैमिली। यू आर इन UK, आई एम भारत, बट वी आर फैमिली। गॉड इज़ वन। हम सब उनकी संतान हैं। हम सब जस्ट लाइक भाई बहन की तरह, एक दूसरे के मित्र की तरह रहते हैं। तो नफरत की ज़िंदगी जीने वाले कभी भी धार्मिक नहीं हो सकते। कट्टर और हेट करने वाले लोग धार्मिक नहीं हो सकते। धार्मिकता का अर्थ है जिनके भीतर लव भरा हो, जिनके भीतर खूब एक्सपेंशन भरा हो, जो विराटता से सब कुछ देखते हैं। वही सूर्य UK में भी है, सन, और वही सन मेरे यहाँ भी है। वही मून UK में भी है, US में भी है, सऊदी अरेबिया में भी वही है, और मेरे यहाँ भी वही है। तो जो यूनिवर्सली चीज़ें हैं वो सब तो एक हैं। पृथ्वी हमारे पास भी वही है, उनके पास भी वही है। वो जो वाटर है, H2O का मिश्रण, वो भी वहाँ वही है, वो भी हमारे ही पास है। बट ये हमने सेक्स बनाए हैं, और ये बनाए गए थे पहचान के लिए। जो जिस क्षेत्र में रहता है वहाँ का खाना कैसा है, वहाँ के कपड़े कैसे हैं, इसको संस्कृति कहते हैं। पर बाद में ये हेट बन गया, ये नफरत की चीज़ें बन गई। हम नफरत के लिए नहीं हैं, हम कट्टरता के लिए नहीं हैं, हम दृढ़ निश्चयी लोग हैं। दृढ़ता और कट्टरता में बहुत अंतर है। सो आई एम सेइंग इट्स नॉट बैड यू फॉल इन लव, बट लव में कभी फॉल नहीं होते, लव में अप होते हैं। प्रेम हमें ऊंचा उठाता है, प्रेम गिराता नहीं है, लस्ट गिराता है। यू फॉल इन लस्ट, ये वर्ड ज़्यादा अच्छा है। एंड यू राइज इन लव। जब लव होता है तो आप राइज करते हैं, आप अप होते हैं, आप विशाल होते हैं, आप विराट होते हैं। और हमारे यहाँ बड़ी सुंदर सी बात है, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। जब कोई सुंदर चीज़ हम देखते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, तो उसके साथ साथ हम उनको भी याद करते हैं, गॉड को, कि कैनवस वही कितना अच्छा परमात्मा ने बनाया है। तो वहाँ केवल लस्ट नहीं रह जाता, बल्कि वो लस्ट लव में कन्वर्ट हो जाता है। हम लव को लस्ट में कन्वर्ट न करें, ये डेटोरिएशन है। लस्ट को लव में कन्वर्ट कर दें, ये अपग्रेडेशन है। और अपग्रेड करने के लिए हम इस दुनिया में आए हैं, डेटोरिएट होने के लिए नहीं आए हैं। दैट्स माई आंसर। I'll just summarize. Guruji gave a very, very, I would say, enlightening answer about falling in love. So, first of all, when he started saying that there's a big difference between love and lust, and what most people, when they are young, when they're going through that stage, they confuse between this. Love and lust is two different things. And he ended saying, and I'll start with that, he said that love is something we normally say you fall in love. And it's not true though. Love should be something that takes you upward. So you fall in lust, but love takes you upward. So I think you rise in love and you fall in lust. And the difference is basically what he said that, see, when he was young, in his school days, he had affection, he had attraction, what a lot of youngsters go through, what we call as love. But then after that, I think in his journey, he understood that this is not the end. And he started his journey to understand the difference between love and lust.
most of us, which we consider love is like lust, but then he started falling in love with the divine. And that's what he said, that love, he used the word, jiski rachna itni sundar, wo kitna sundar hoga. That means that, let's say, I see a beautiful person and I get attracted and I'm like, oh, I think I'm falling in love. But the spiritual way is like the creator who created this beautiful person, how beautiful that creator would be. So you connect with the creator, and that is, I think, like that's when he started connecting with the creator. Second thing is, I think he touched a very important point, which is we as a society make people feel ashamed of falling in love or talking about sex. You know, we make them regret that is, oh, this is something wrong, you should not do it. And what he said, that if you read Indian scriptures, and so there was a rishi called Vatsayan. He wrote an entire book on Kam Shastra, what we call it Kama Sutra in the West as well, about sex. And he Go wrote to Khajuraho. yeah, you read detail about sex, and that was written by us rishis years and years ago. But what happened after that? So I'm saying, like, the Indian culture, they already include this. But as society, we start shaming people that, oh, this is wrong, you should not do it. And God has given us these sensory organs, you know. If you see something nice, you get attracted. If you eat something, you get attracted. You smell something nice, it gives you a good feeling. So there's an organ, straight, like, if I can be very blunt, it's like your hormones that influence, or like that's your sexual desires come out. So why repress it? Don't repress it. Do it, but then do it. What we say is there's a right way to do everything. You know, जिसको हम मर्यादा बोलते हैं थोड़ा सा, कि there's उसको मर्यादा. And this is energy. This is also energy. Convert in a big energy, enlightened energy. It's not seen, and you are calling it seen. And 8 billion people, the most of the people doing this, and you are calling seen. That everybody is sinner here. Yeah, So it's subject, explore it, yeah. and need education about this. Yeah, I think what he also said earlier was a lot of people, because sex is like, in people's mind, you tell them that is a sin, and then they live with that guilt all their life. You know, it's like what he said, it's an energy. When you start celebrating it, which is, I think, it's a very controversial topic, but he's very outspoken. A lot of people won't go there. But what he's saying is, like, encourage people not to do that, but like do that in the right way, and not to feel guilty about it. And after that, he touched upon something very important, going back to the question of Sanatan. Sanatan, again, it's like he said, it's you know, because you asked the question about Hinduism and Sanatan, it's not something very small about one religion, one sect, like this community, that community. It includes the entire planet, 8 billion people. You know, it's so big, and it also is about love. You know, love of like the entire world. I'm talking something very big. It's not one-to-one love, by the way. It's like, you know, you have this country, this country. There are borders, this color people. You know, it's like the sun that rises in India is the same sun that rises in UK, America, Canada. The love that you feel, it's like people in India feel the same love that you feel in UK. And what Sanatan does is, once you understand the religion, it's not a religion, sorry, once you understand this dharma, this way of life, then you understand the true meaning of love. And that love is to the Creator. And that love is the love for the entire globe. I think that... Culturally, we are different, but spiritually, we all are one. Spirituality में हम सब एक हैं. कल्चर अलग अलग हैं. हम यूके में सन थोड़ा कम निकलेगा तो वहाँ कपड़े कैसे पहनेंगे, कब तक धूप में रहेंगे, सनबाथ कैसे लेंगे. बट यहाँ जून में कोई सनबाथ नहीं लेगा, वो ढूंढेगा कि कहाँ पेड़ के नीचे बैठे, कहाँ छाँव में बैठे. यहाँ के कपड़े अलग होंगे, वहाँ के कपड़े अलग होंगे. जहाँ कोल्ड होगा वहाँ टोपियाँ होंगी, ये होंगे, मफलर होंगे. यहाँ पे धोती कॉटन के कपड़े होंगे. खाना क्लाइमेट के अनुसार, जो भोजन लेते हैं क्लाइमेट के अनुसार होगा.
कहाँ पर कौन सी, हमारे यहाँ ऋतु के अनुसार खाना है, बरसात में क्या खाना है एंड ठंडी में क्या खाना है, गर्मी में क्या खाना। तो कल्चरली हम अलग अलग हैं और होना चाहिए, यही ब्यूटी है। और ये ब्यूटी नहीं है केवल सुंदरता के लिए नहीं है, इट्स आवर नीड, बॉडी के नीड के अनुसार हमारे जीवन से जुड़ा हुआ चीज है जो कल्चर का निर्माण करती है। बट स्पिरिचुअली वी ऑल आर वन। स्पिरिचुअल शब्द बना है स्पिरिट से, स्पिरिट, एंड 8 बिलियन पीपल लाइक स्पिरिट, दे नीड स्पिरिट, दे वांट टू लिव इन स्पिरिट। सो स्पिरिचुअलिज्म की तरह हम एक हैं, कल्चरली हम अलग अलग हैं। इस बात को सारी दुनिया जब समझेगा तो कट्टरता मिटेगी। हम बड़े, हम बड़े, हम बड़े नहीं, हम बड़े नहीं, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा नहीं, हम सब ही बड़े हैं। पूरा वर्ल्ड बड़ा है, हमें और बड़ा होना है और अच्छा होना है। मुझे लगता है जो जो चीज़ें हिडन हैं उनको अनफोल्ड करना जरूरी है। मैंने इसलिए इतना बोला सेक्स के ऊपर कि ये हिडन हैं, इसको छुपा के रखे हैं। कमरे में कुछ और है, बाहर कुछ और है। मर्यादा ठीक है, मर्यादा करनी है, हमें बाहर कैसे रहना है वो जीने का तरीका है, बट एजुकेशन जरूरी है ना, एजुकेशन जरूरी है। सीन 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 सीन, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं। बोला आप ऑलवेज जो चीज कहेंगे आप हो जाएंगे। मैं पापी हूं, मैं हैप्पी हूं, मैं हैप्पी हूं, मैं हैप्पी हूं, मैं हैप्पी हूं। वो अच्छे हैं, वो अच्छे हैं, वो अच्छे हैं, वो अच्छे हैं, तो आपको एक अच्छी फीलिंग आएगी, अच्छा वाइब्स आएगा। वो बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे हैं, तो बुरा वाइब्स आएगा। ये पाप है, ये पाप है, ये पाप है, और रोज वही पाप कर रहे हैं आप। आपके खानदान करते आए, आप कर रहे हैं, आपके बच्चे करेंगे, तो पाप करना सिखा रहे हैं, छुप के करना सिखा रहे हैं। एजुकेशन जरूरी है, एंड इट्स द पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ लाइफ। एंड यह लाइफ भी है, जिंदगी भी है। अगर आप विज्ञान की दृष्टि से देखें तो आई थिंक बिना इसके तो ये सृष्टि भी नहीं चलेगी। तो सृष्टि चलाने की विधा को सीन कैसे कह सकते हैं? इट्स माई क्वेश्चन, इट्स माई क्वेश्चन। जिससे एक्सपेंशन हो रहा है, जिस विधा से इस स्थान पर कोई एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद जन्म लेते हैं, कभी कोई स्वामी विवेकानंद जन्म लेते हैं, कभी कोई महर्षि अरविंदो जन्म लेते हैं, कभी रामकृष्ण परमहंस, हूएवर में भी जो भी इस पृथ्वी पर आया है वो टपक के नहीं आया। द प्रोसेस, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सेक्स। उस प्रोसेस से आए। एंड आप कह रहे हैं सीन 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 सीन, इसका मतलब ये है मिठाई की दुकान पर मिठाई लगी है, मर्यादा से आप जाएं, आप मेहनत करें, कुछ पैसे कमाएं, उस पैसे से मिठाई लेके आप खाएं। मिठाई की दुकान को लूटना मना है, मिठाई की दुकान को लूटना मना है। तो सुंदरता देख करके ये जो बलात्कारी लोग हैं, ये जो शोषण करने वाले लोग हैं, ये जो भोग की वस्तु समझते हैं स्त्रियों को या स्त्रियां पुरुष को, डिफरेंट कंट्री में अलग अलग बातें हैं। कहीं पे कई एक कंट्री हैं जहाँ पे पुरुष साई होते हैं, जहाँ उनको फीमेल छेड़ देती हैं जा कर के। ऐसी मैं पढ़ रहा था, देख रहा था। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि ये बहुत कॉमन है, और कॉमन को कॉमन ही रहने देना चाहिए, इसको इतना अनकॉमन नहीं बनाना चाहिए। तो और मैं जब बातें करूँगा इस विषय में तो मुझे पता है मेरे ऊपर फिर वो थ्रो किए जाएंगे और स्लेजिंग की जाएगी। अनदर ओशो, आ गया एक और ओशो, आ गया संभोग से समाधि तक बोलने वाला, ये आ गया सेक्स पे बोलने वाला, ये भी ऐसा ही है, वो कहेंगे। बट मेरे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उसका, मैं जानता हूँ इट्स माई लाइफ। एंड यह यूनिवर्सली स्पिरिचुअली कैसे जीना है ये मैंने सीखा है अपने गुरु से। तो बहुत ज़्यादा हाइड करने की ज़रूरत नहीं है। जो विषय जितना हाइड होगा अट्रैक्शन उतना ज़्यादा होता है। आप यहाँ आइए आश्रम में, सब कमरे सब जगह जाने का होगा, एक उधर मत जाइएगा। तो आपके भीतर उधर क्या है सौरभ, क्या है उधर, कुछ विशेष है क्या, तो मन में उठेगा। तो किसी भी चीज़ को फोल्ड करने की जरूरत नहीं, अनफोल्ड रखिए, एजुकेशन रखिए। लव होना बड़ी अच्छी बात है। आप देखिए स्त्री और पुरुष का मिलन, हमारे यहाँ गॉड एंड गॉडेस, राधा कृष्ण, सीता राम, गौरी और महादेव, पार्वती, इंद्र इंद्राणी, ऋषि जितने हैं, ऋषि जितने भी, घर गौतम, सांडिल्य, कण्व, वशिष्ठ, विश्वामित्र, भगवान के गुरु, सबकी पत्नियां हैं, सबके बच्चे हैं, सबकी उस समय में बहु विवाह था, कोई 3, कोई 5, कोई 10 विवाह करते थे। उस समय में भी लव था। वेद व्यास जी का जन्म
ये बड़ा कंट्रोवर्शियल है, बट कंट्रोवर्सी नहीं है। उसको वो बता रहे हैं वो महापुरुष कि ये बहुत ईजी है, जितना इसको कंट्रोवर्सी तुम लोग मत बनाओ। ये कंट्रोवर्सी हमने बनाया है। हम कुछ और बड़ी चीज़ नहीं कर सकते तो हमने नैतिकता का लबादा ओढ़ लिया है। नैतिकता, ये नैतिकता विदाउट स्पिरिचुअलिज्म के हो नहीं सकता। केवल नैतिक व्यक्ति कभी हो नहीं सकता। नैतिक मतलब नीतियों से संपन्न, और जो नीतियों से संपन्न होता है उसी व्यक्ति को धार्मिक कहते हैं। रिलीजियस, स्पिरिचुअलिज्म, ये सब बिल्कुल विराट चीज़ें हैं, बहुत बड़ी चीज़ें हैं, पर वर्तमान समाज में सीमाओं ने युद्ध के माध्यम से इसे बहुत छोटा बना दिया है, इसे घृणास्पद बना दिया है। सनातनी कह के, हिंदू कह के मुझे कोई डिमोरलाइज नहीं कर सकता। Just before Saurav translates, I like the fact that you're so open in terms of talking about sex, because in terms of my sort of culture, my religious upbringing in Ireland, it was something that doesn't get discussed, and it was something that almost is quite tarnished. So it's really helpful to hear you as a guru saying such positive things. मैं गुरुजी का आंसर के पहले ये बता दूं कि इलेन ने कहा कि वेस्ट में भी ये आयरलैंड से आती हैं, और आयरलैंड में भी सेक्स के बारे में इतना डिस्कस करना मना है। वेस्ट में हम बात करते हैं, और ये गुरुजी की तारीफ़ कर रही है, बोल रही हैं कि भारत में रहकर जो कि इनके देश में भी इतना कोई गुरु इतना इस ओपनली से नहीं बात करता है, वो भारत में रहकर वृंदावन में एक आश्रम में बैठ के गुरुजी इतने ओपनली बात कर रहे हैं, और ये इसकी तारीफ़ कर रही हैं क्योंकि ये इंसान की ज़रूरत है। गुरुजी इसमें पहले ये कह रहे थे कि सेक्स एक इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वो इंसान की ज़रूरत है। Sex is a very natural thing. It's a natural thing. We as a society have made it such a big thing. We have made it a sin. We have like, you don't do this. When you stop someone, when you say to any human being or a person, don't do this, that is wrong. It's a human nature. It's a curiosity that you will do it. You will start finding it about it, And then essentially, sex is we are here on this planet. You are fighting against nature. Yeah. You are fighting against your body's hormones. Yeah. Why? There's no need for It's it. a normal. Yeah. It's a common. Exactly. It's a the बहती हुई नदी, Yeah. उसको रोकने का प्रयास क्यों कर रहे हो? Yeah. बहने तो। It's exactly, this is like something which is, you have to take it, the moment you take it like very common, very light, you will take it very lightly. Like we talk about scriptures, we are talking about ethics and values. All the Indian gods, Ram, Shankar, Krishna, they had spouses, they had kids. The kids come only after, if I can say, they had sex. All the rishis, they had wives, they had multiple wives. I think they never considered it impure. We as a society, when we started growing, we started saying, this is right, this is wrong, this is ethics, this is niti, this is how you should live. If you don't live like that, you are wrong. And that is a problem in the society. That is the disease in the society which we are giving it to our children. It's like if you tell someone 100 times that that is wrong, that is wrong, that is wrong, subconscious mind says, yes, I am wrong. And that person lives in the guilt forever. I think... Sex is not disease. Those people who are saying that this is sin, exactly they are disease for our society. Yeah. This is not disease. This is normal. गुरुजी, इसके बाद एक और इस प्रश्न में एक और प्रश्न था इनका, और उसका एक ये है, हम लव मैरिज और अरेंज मैरिज की बात कर रहे थे। तो जब भी हमारी चर्चा होती है, एक बाहर में एक चीज़ होता है कि भारत में ऐसे कैसे होता है कि कोई एक दूसरे को जाने पहचाने बिना माँ बाप मिलवाए और अरेंज मैरिज हो जाता है, और अरेंज मैरिज अगर हो गया और वो शादी अगर सही नहीं चला तो डाइवोर्स को इतना हम लोग हवा क्यों बना देते हैं? तो इस दो चीज़ों में आपकी क्या राय है? और इसमें एक और सवाल ये था कि क्या अगर आप फ्यूचर में कभी शादी करेंगे तो तीनों का आप हेलेन, ऐसा है कि लस्ट मैरिज जो होते हैं वो ज़्यादा टूटते हैं, जो सिर्फ लस्ट पे बेस होते हैं। वहाँ वैल्यूज़ नहीं हैं, वहाँ जिस लव की मैंने जो परिभाषा दी कि जो बलिदान एक दूसरे के लिए करना है,
तत्सुखे सुखित्वम, तुम्हारे सुख में मैं सुखी हूँ. आर यू हैप्पी? आई एम हैप्पी. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लव. आर यू हैप्पी? यस, देन आई एम हैप्पी. दिस इज लव. आई एम नॉट हैप्पी and you are saying I am not happy. So both are not happy. It's a war of devil's war, not human love, human relationship. And एक चीज़ और मैं कहता हूँ, मैंने कल भी कहा था कि अनुबंध, प्रबंध और संबंध. हाँ, एक अरेंज मैरिज, अरेंज मीन्स एक स्त्री एक पुरुष को मिलाया गया, उनसे आपकी शादी इनके साथ की जा रही है. तो अरेंज मैरिज के बाद भी हुआ लव ही, वो लव कर रहे हैं. ऐसा नहीं कि अरेंज कर रहे हैं ज़िंदगी भर, उनको लव हो गया है. दैट्स वाई दे आर स्टेइंग अ लॉन्ग टाइम, 50 years, 40 years एंड वेरी हैप्पी लाइफ विद देयर चाइल्ड्स, अपने परिवार के साथ. लव ही मूल है. वो आपने पहले चुन लिया. अब चूँकि बहुत ज़्यादा हम थोड़े खुले हुए विचार के हो रहे हैं दुनिया में, तो हम पहले मिल ले रहे हैं कि उनके साथ मिल लिया, आप कैसे हैं, पढ़ाइयाँ कैसी हैं, क्या हैं. एंड इट्स नॉट बैड, इट्स गुड. क्योंकि मूल धर्म और युग धर्म, ये जो एज धर्म है, इस एज में कैसा धर्म होना चाहिए, एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, उसके अनुसार ये सही है. और हम कोई बहुत ज़्यादा एडवांस भी नहीं हुए हैं. पहले भी स्वयंवर हुआ करता था, हजारों लोग बैठा करते थे. ज़्यादातर शादियाँ स्वयंवर से बीच में आ गया कि फिर एक दूसरे को नहीं जान रहे और शादी कर दिया, विवाह हो गए. ऐसा नहीं होता था. स्वयंवर होता था, कन्या जाती थी, सबसे केवल देखती नहीं थी, लिखा हुआ है केवल सुंदरता. दैट मीन्स वो प्रत्येक से मिलती, बातें करती, सबको समझती. पहले से सब बताया रहता था, वहाँ के राजा हैं, इनका ये है, ये ऐसे हैं, इनका नेचर ऐसा है, इन्होंने एक बाघ मारा था, इनके ये सब समझती थी, बात करती थी. और वो जिसको लाइक करती थी फिर उनसे विवाह करती थी. वो लव मैरिज ही तो था. स्वयंवर का मैरिज तो लव मैरिज था. कोई हम बहुत बड़ा नया काम थोड़ी कर रहे हैं, और थोड़े ज़्यादा खुल के कर रहे हैं, और अच्छी बात है, इसका विरोध नहीं होना चाहिए. पर माता पिता ने अगर किसी बच्चे का मन है कि मेरे पिताजी ही मेरे लिए मेरी कन्या चुने, मेरी लाइफ पार्टनर चुने, और वो चुन के दोनों में होता है और उनमें लव होता है, तो ये भी बुरा नहीं है. उसको भी आप पिछड़ा नहीं देख सकते. अरे तुम तो एकदम मॉडर्न नहीं हो, तुम्हारे पापा ने कर दिया. पर उनका मन है कि मेरे पापा मम्मी मेरे लिए चुने. उनका भी मन है मेरे पापा मम्मी मेरे लिए चुने, फादर एंड मदर, और दोनों ने चुना, उनमें लव है और दोनों अच्छे से जी रहे हैं. तो क्रिटिसाइज की ये बात नहीं है. आप जहाँ कंफर्टेबल हैं, जहाँ आपका लव सस्टेन कर सकता है, जहाँ आप अच्छे से जी सकते हैं, इसको कीजिए. रथ टू राफेल, पहले रथ चलते थे युद्धों में, अब राफेल चलते हैं. जो चीज़ चेंज की ज़रूरत है, चेंज जिंदा लोग ही कर सकते हैं, मुर्दे कभी चेंज नहीं करते. मुर्दा जो कम्युनिटी हो जाती है, जो डेड हैं, यही लिखा है यही होगा, वो मुर्दे हैं. परंतु जो जिंदा हैं वो अकॉर्डिंग टू एज, तब टेम्परेचर उतना होता था कि पता नहीं, अब जो टेम्परेचर है उसके अनुसार हमें निर्णय लेने पड़ेंगे. तब जल उतना प्रदूषित था कि नहीं पता नहीं, पर अब पानी कैसे पीना पड़ेगा वो निर्णय हमें लेना पड़ेगा. तब पता नहीं वो टेस्ट जरूरी थे या नहीं, एड्स के और इसके, बट अब जरूरी हो गए हैं, क्योंकि हमको जानना पड़ेगा कि हमको आपके साथ रहना है कि नहीं. इट मे बी पॉसिबल किसी को एड्स हो भी और फिर भी उससे कोई प्रेम करके उससे विवाह कर ले, ये उनकी चॉइस है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ. बट टेस्ट करा लेना कोई बुरी बात नहीं है. और ये न्यू एज है, पहले इतने टेस्ट नहीं थे पहले, लेकिन वो विज्ञान थे. ये जो कुंडलियाँ देखते हैं, ये जो हमारा सनातन विद्या है, जो बताता था कब सूर्य ग्रहण होगा, एग्जैक्टली लिख देते थे बिना नासा के. तो बहुत डेवलप्ड साइंस था उस समय भी. साइंस ख़त्म नहीं था, साइंस था. साइंस फिर दबा, मिटा, कट्टरता आई बीच में, लूटपाट करो, ये करो, साइंस से किसी का मतलब नहीं रह गया. फिर साइंस राइज हो रहा है, और एक अच्छा दिवस है पूरी दुनिया के लिए. एंड आई थिंक अगर ऐसे ही खुल के बातें होती रहें, अच्छी बातें होती रहें, सीन कह के, जीसस के टाइम में भी वही था कि पत्थर मारो पत्थर मारो पत्थर मारो किसी को, और उन्होंने कह दिया था कि पहला पत्थर वो मारे जिसने कभी कोई सीन न किया हो. ये सीन, जिस सीन की बात की जा रही है. बट उस समय में भी लोग बड़े ईमानदार थे, मुझे लगता है कि पूरा बाजार खाली हो गया. नहीं तो आज तो जानते भी हैं कि मैंने किया, फिर भी पत्थर मारेंगे कि मुझे लोग जान न जाएं कि मैं कहीं पापी हूँ. उस समय लोग चले गए कि नहीं मेरे से भी तो ये हुआ है. तो दैट मीन्स हम सभी कर रहे हैं. बट अब उसको एक्सपोज हो गया तो आप पापी हो गए, और आप अंदर हैं
तो आप बड़े पुण्यात्मा हैं। ये कॉन्सेप्ट मिटाना होगा, इसलिए रोज़ नए नए पापी एक्सपोज हो रहे हैं यहाँ पर, रोज़ वीडियो वायरल हो जा रहे हैं, रोज़ चैटिंग वायरल हो जा रही है। आज बड़े चेयर पे बैठे हैं, कल मुंह छुपाते घूमना पड़ रहा है। हमारे यहाँ एक एंशियंट ऋषि हुए विश्वामित्र, विश्वामित्र बहुत तपस्वी थे। उनके जीवन में द मोस्ट ब्यूटीफुल विमेन, मोस्ट ब्यूटीफुल, द मेनका, द जस्ट लाइक अ हॉलीवुड सेलिब्रिटी, और कोई बहुत बड़ी हीरोइन, बहुत बड़ी एक्ट्रेस, क्या नाम था उसका, जो भी हो, एंजेलिना जॉली। मैंने उनको देखा है, उनको लोग बहुत लाइक करते हैं। तो उनसे भी खूबसूरत, बहुत खूबसूरत विश्वामित्र जी के जीवन में आई। विश्वामित्र जी का अट्रैक्शन हुआ उनके प्रति, अट्रैक्शन लव में कन्वर्ट हुआ। उनसे उनकी एक पुत्री हुई, बेटी, डाउटर, शकुंतला का विवाह दुष्यंत से हुआ। दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र हुए भरत, जिन्होंने शेर के मुंह खोल के उनके दांत गिन लिए, और उन्हीं भरत के नाम से इस देश का नाम हुआ भारत। तो वो तो पूरा, और वो विश्वामित्र राम जी के गुरु, द लिविंग मास्टर, राम जी के गुरु। राम इतने मर्यादा पुरुषोत्तम, और गुरु बोला हॉलीवुड से एक अभिनेत्री आई थी, उसके साथ वो पतित हो गए थे, उसके साथ वो गिर गए थे। नहीं, उनका वो अट्रैक्शन था, अफेक्शन था, लव हुआ। बाद में उन्होंने, जब उनका हो गया, फिर दोबारा एक अभिनेत्री आई, रंभा। जब फिर वो करने लगे, फिर खोज करने लगे भगवान की, तो फिर आई, तो उन्होंने कहा नो, वो मेरा टाइम चला गया, इट्स नॉट माई नीड। मैंने वो देख लिया, मैंने जीवन जी लिया, वो जीवन, मेरी एक पुत्री भी हो गई, अब मैं ये जीवन नहीं जीना चाहता। अब मैं बिकम ए साइंटिस्ट, मैं ढूंढना चाहता हूँ अपने आप को, मैं जानना चाहता हूँ अपने आप को, हु एम आई, इसके लिए गो। और उन्होंने उनको रिफ्यूज कर दिया, पत्थर का बना दिया, मतलब जाओ जाओ, तुम्हारा काम नहीं है। एंड दिस इज आवर हिस्ट्री, दिस इज रियल हिंदुइज्म, दिस इज रियल सनातनिज्म। व्हाई नॉट टॉकिंग अबाउट दिस? इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं? इतने खुले हुए हम हैं, इतना ओपन है हमारा पूरा हिस्ट्री, इसके बारे में बात नहीं करते, सीनर कह दिया जाएगा। तो एक आखिरी बात, अगर आपसे कोई भूल कभी होती है और आप उस भूल को स्वीकार करके, पर भूल भी मैं नहीं कहता, पीपल्स ऑलवेज लर्निंग, कोई भूल नहीं होता, हम लर्न कर रहे हैं। गड्ढे में गिरे, लर्न हुआ, गर्म पानी में हाथ डाले, ओ नोट, अचानक थर्मस में हाथ नहीं डालना चाहिए, हाथ जल जाएगा। पता उठा करके कुछ खा लिया, इतना तीखा, अरे भाई समझ के खाना चाहिए, तीखे कम। हम ऑलवेज लर्न करते हैं, लर्निंग है, ये लर्निंग पीरियड है। व्हाई आर यू कॉलिंग इट सीन? एवरीथिंग इज सीन 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 सीन। तो आई एम नॉट ए ह्यूमन, आई एम ए बॉडी ऑफ सीन। एक पापी खड़ा है हर जगह, हर आदमी एक दूसरे को पापी के रूप में देख रहा है। एंड वी आर द क्रिएशन ऑफ गॉड, द सुपर क्रिएशन ऑफ गॉड, द ह्यूमन बीइंग। तो हम बहुत भगवान के पुत्र हैं, हम पापी नहीं हैं, इस बात का बोध हमें होना चाहिए। और यही सनातनिज्म है, वही हिंदुइज्म है, यही स्पिरिचुअलिज्म है, और पूरा फंडामेंटल जिसको बोलते हैं, यही ज्ञान है, फंडामेंटल ज्ञान करते हैं इसको। दैट्स ऑल। If he can translate in my words, then what a I'll try because see, Guruji has given I think a very, very bold answer, and I have not heard any other person talk like this on this topic. So this is a very, very bold and very, very revolutionary answer. First of all, the question about marriage, arranged marriage and love marriage. So basically, he said most of the marriages are lust marriage. The thing about lust marriage is that I'm not happy, you're not happy, still we'll continue with this. There's always I need something from you. only the basis of body needs. It's just body not needs. Need of mind needs, soul needs. Yeah. Love marriage is basically I'm happy in your happiness. It's sacrifice. It's your happiness. It's not just it's not about just needs, your soul, connection of soul. And that's what he talked about love marriages. Now, what happens in the West, you don't have arranged marriage. It's a very cultural thing in India where you have arranged marriage. But the thing with arranged marriage is, it's a lot many times parents seek out proper prospect for you, and then after arranged, love happens.
the essence is love. Love happens after arrange. Like people act as a connector where like your father will connect you to my father, right? No, connect you to me, and then basically love comes after it. So love is the core and essence of it. And even it's funny because now we talk about love marriage and arranged marriage. In ancient India, we used to have Swamvar. The Swamvar is basically, in a very brief nutshell, where a bride will be presented to 10 different options, 10 different grooms. And then she will select one groom from those 10 options based on his capability, looks, and stuff. It's a practice that happened in India that has stopped right now. So I think in India earlier it was much more modern. Then now we say that, oh, you have to do this, do that, do this. He said something very important, and I want to touch about this. Vishwamitra. Vishwamitra in Indian scriptures, in Indian history, was one of the greatest rishi guru ever. Vishwamitra was guru. Lord Rama's guru. Lord Ram's guru. Ram is India's essence. You know, we have Dipavali, you have Ram Mandir. Maryada. All of India is essentially defined around Bhagwan Ram, Lord Ram. His guru, the story goes, he was a rishi, you know, he was a saint, and he was just meditating, you know, he was just connecting to the God. And this very beautiful woman walks in, like very, very pretty woman walks in, Menka. She was like, if you talk about in terms of what Guru said, imagine she's 100 times more prettier than Angelina Jolie, right? She walks in, and this person, the rishi, gets distracted from his meditation, from his sadhana. And it was a big problem. But then he decides to fall in love and he marries that person. And then from that marriage, they had a daughter. The daughter was called Shakuntala. And Shakuntala ended up marrying this person called Dushyant. And from Shakuntala and Dushyant, Bharat was born. Bharat is the name of India. India is called Bharat now. India is gone. By the way, it's a new thing. India has become Bharat from like last 2 days. Yeah. It has become Bharat. That's the name of the country. India is gone. Bharat, the name of the country, comes from the son of these two, who were the daughter of this rishi. So it's a very, very it's not controversial. It's a truth. It's a hard truth that a rishi, he gets distracted by beauty, and then he eventually, that produces a child from which the whole country is coming. And now what people are doing, people call these small things as sin. Oh, you have to be like this. Let's say if you are a guru or you are a saint, you can't do this, you can't do this. These are all the rules that have been provided and that have been set up so that they put people on this pedestal. You are the perfection, you can't do this because this is wrong. And what Guru is saying is, it's human, it's nature. Nothing is wrong. Nothing is wrong. It's your country. Your country comes from this. Your country comes, if it is a wrong, your country has come from a wrong. Do you accept it? And everyone will be like, no, 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 no. It's a very important topic. And finally, he said that nothing is a mistake in life. There's no mistake in human life. You're human, you're on a journey. Everything is a learning. Everything is a learning. There's no mistake, right? And this learning, and this is what he said in the end, this is what Sanatan is. This is what Dharma is. This is what Hinduism is. It is not about a book. It is not about like you do this. It's about this, which is like this way of life that I'm a human. I've been given these hormones. I've been given this body. I'm learning from my mistakes and I'll become this great person in this great country. And I'm sorry, I'm not saying country, this whole world. You know, it's a thing that takes people towards, rises people towards divinity, if I can use the word divinity. Guruji, One thing, कोई Thomas, imagine about Thomas Edison. तो Thomas Edison बल्ब बनाए, ओके, या किसी ने वायुयान बनाया, हवाई जहाज बनाया, वो तो हमारे सनातन में ही बना था, बाद में आपने ले लिया, वो अलग बात है, वो डिफरेंट विषय है. बहुत पहले भी पुष्पक विमान थे, बट किसी ने पुष्पक विमान बनाया, किसी ने फाइटर जेट्स बनाए, किसी ने फ्रीज बनाए, किसी ने एसी का इन्वेंशन किया, कोई पानी से बिजली कैसे बनेगा इसका इन्वेंशन किया, और उसके 5 गर्लफ्रेंड थे और 5 खुश थीं और वो भी खुश था. देन व्हाई आर यू वरी, व्हाई आर यू इन वरी, व्हाट्स प्रॉब्लम?
उनके विराट इन्वेंशन का लाभ पूरी दुनिया को मिल रहा है, एंड व्यक्तिगत जीवन में वो खुश हैं किसी के साथ, वो भी उनके साथ खुश है, तो ये इज इट द टॉपिक ऑफ गॉसिप? यू हैव मच मोर टाइम फॉर गॉसिप्स. उन्होंने जो कुछ दिया वो पूरी दुनिया के लिए दिया. एंड अब यही कारण है भारत में इतने लोग डरते हैं. आज आप उनके फोटोज़ को कंप्यूटर से मिक्स करके दिखा दो, वायरल कर दूंगा, आपने इनके साथ, आपने इनके साथ, आपने इनके साथ. ये कांच का घर बन गया है. द स्पिरिचुअल गुरु, a spiritual leader lives in the glass house. One stone can break everything. Why are you living in fear? Please don't fear. God is here. I really like your answer in relation to love versus arranged marriages, and I think you very much raised that point as well about, sometimes there's these expectations on society that you must do this and you must do that, and that's not just in India. That's obviously been renamed. That's across the globe. So it's a good answer. I'll let you interpret what Guruji just said as well. So first of all, I just kind of add to the point कि जो गुरुजी ने विचार आपने व्यक्त किया ओपननेस के बारे में, और किसी चीज़ को हम मर्यादा बोलते हैं, सिन बोलते हैं, ये प्रॉब्लम सिर्फ भारत में नहीं है, ये वेस्ट में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है. और आई थिंक ये जो आपने बात रखी है, इसकी ज़रूरत वेस्ट में भी बहुत ज़्यादा है कि लोग समझें कि जो इंसान है, नेचर है, भगवान का क्रिएशन है, उसमें इंसान ही इंसान को वो बता देता है कि तुम ये नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, ये नहीं करोगे. जब भगवान ने आपको ऐसा बना के भेजा है तो इंसान कौन होता है? और what Guruji said, it's quite important. Basically, he said that someone is a guru, a spiritual guru, a saint. So what we have done is we have put them in this glass house that you have to be perfect. There cannot be even one, let's say, dot or a crack, which is look like that. Yeah, just always. look like that all the time, which is humanly. That's a hypocrisy. That's hypocrisy, exactly. And I think what he also said earlier, it's a very good point, which is like people who say that you can't do that, they are the biggest hypocrites. These are the people who will be like, oh my God, you are a sinner. And when they looked in themselves, they have done all the sin. I think it's a very important thing that we are talking so openly about it, and it's coming openly from this part of the land, which is also like one of the most spiritual part, not just in India, but of the world. But people don't talk about it. People just shy about it. People are like, oh my God, let's not touch that subject. So it has been a very good topic. Do you want to ask anything else? Yeah, I want to ask a final question. Okay. So you are known actually, for being very direct and very honest, and I like that. And you're very good in terms of, talking about different topics. But what I would like to know is, how would you like to be remembered in 2 sentences, Ask. हिंदी में बोल. जी. सो इन्होंने पूछा कि अभी जैसे वार्ता के बाद पता चला कि गुरुजी बहुत ही ओपन है, बहुत ही डायरेक्ट हैं, कोई फिल्टर नहीं है, सीधा सीधा बात करते हैं. तो जब गुरुजी जब नहीं रहें और जब लोग उनको याद करें, तो वो क्या होता है, जो हम उन 2 लाइन ऐसा क्या रहेगा उनके बारे में जो लिखा जाएगा कि गुरुजी हमारे ऐसे थे, या गुरुजी किस तरह वो याद किया जाना चाहते हैं? देखिए, मैं जीना चाहता हूँ अच्छे से, आनंद में, और मेरे आनंद के साथ ये बाई प्रोडक्ट है कि कितने लोग आनंदित हो जाते हैं. आई एम लिविंग फॉर माई सेल्फ. मैं हैप्पी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, और मुझे पता है दिस इज़ द वे. हैप्पी पीपल कैन मेक यू हैप्पी, द सैडेस्ट नॉट मेक यू हैप्पी. तो जो स्वयं हैप्पी है वो लोगों को हैप्पी बनाता जाएगा. चार्ली चैपलिन बहुत वो कॉमेडी करते थे, बट इन रियल लाइफ वो बहुत डिस्टर्ब थे, बहुत दुख थे उनके जीवन में, चार्ली चैपलिन के. ऐसी दोहरी ज़िंदगी नहीं जीना है. मुझे ये ज़िंदगी जीनी है कि मैं भीतर से भी खुश हूँ, हैप्पी, और बाहर से भी हैप्पी हूँ. लोग मिले, और मैं चाहता हूँ कि मेरे बारे में वही लिखा जाए जिससे पीपल
कि हैप्पीनेस में उनको सहायता मिल सके। वो एक वर्ड हो, बिना लिखे भी हो जाए तो बिल्कुल ना लिखा जाए, लिखने से हो जाए तो 2 लाइन लिखा जाए, 2 पन्ने से हो, 200 पन्ने से हो, जिससे हैप्पीनेस बटे, हैप्पीनेस आए, लोग ट्रूथ को समझें, लोग फैक्ट्स को जानें, लोग बात करने में डरे नहीं। फियर इज नॉट स्पिरिचुअलिज्म। स्पिरिचुअलिज्म रिमूव्स फियरनेस। फियर है तो आप स्पिरिचुअल नहीं हो, और स्पिरिचुअल हो तो फियर नहीं है। इतना ही इसकी परिभाषा है। मुझे लगता है यही 2 लाइन लिख दिया जाए। इफ यू आर स्पिरिचुअल, No fear. Just in like 2 lines, he said like basically because he's always happy inside. You know, he's always happy inside. He doesn't have to try to be happy. And because he's always happy inside, he's always blissful inside, people who are around him, who follow him, they are happy as well. And what he wants to do is, and also the thing he touched upon, very important, was Charlie Chaplin. So Charlie Chaplin was considered to be the greatest comedian ever, even from the black and white era. He made the whole world laugh, but internally, off screen, he was very disturbed. He was very, very, very disturbed. I've read about it. He has also read about it. So he doesn't want this dual life, that oh, you are happy in front of the world and you are crying back home. And then finally, it's about fear. It's like a happy person is fearless person. A fearless person is a spiritual person. Spirituality does not happen with fear. So you have to be fearless. And I think that's one of the motto. ask. No, I'm just saying that's the perfect answer for the happy podcast, isn't it? It is What's he saying? happy podcast के लिए ये सबसे सही आंसर या दैट्स नाइस। मेरा ये है कि आपके पास चॉइस है। इफ़ यू हैव चॉइस, डोंट वरी, इफ़ हैव चॉइस, कि आप अंदर से भी खुश रह सकते हैं, हैप्पी, और बाहर से भी रह सकते हैं, देन व्हाई नॉट यू आर चूजिंग बोथ, इनसाइड एंड आउटसाइड, इफ़ यू हैव चॉइस। अगर चॉइस नहीं होता कि नहीं आप अंदर से खुश नहीं रह सकते हैं पर बाहर लोगों को खुश कर सकते हैं, देन चार्ली चैपलिन इज़ आवर आइडियल। लेकिन अगर हैप्पीनेस ऐसा है कि भगवान राम, भगवान कृष्ण जो भीतर से भी खुश हैं, आनंदित हैं, और जो बाहर से भी लोगों को खुश हैं और खुशी दे रहे हैं, तो चॉइस हमारे पास है, बिकेम ए ह्यूमन बीइंग। हम एक ऋषि हो सकते हैं, हमारे भीतर सब कुछ संभावनाएं हैं, तो हम उस ग्रेट चॉइस को अपनाते हैं। मैं भीतर से भी खुश हूँ, बाहर से भी खुश हूँ, हमको देख के भी लोग खुश हैं और मैं लोगों को भी देख के खुश हूँ, बिकॉज द सिनर कॉन्सेप्ट इज़ नॉट इन माई लाइफ। सिनर कॉन्सेप्ट, nobody is sinner here, and they all are learning. जिसने लर्न कर लिया becomes a rishi, a good man, a gentleman, becomes बुद्धा। जिसने लर्न नहीं किया, those रावणा, कंसा एंड हिरण्यकश्यपु। तो लर्न करना जरूरी है। चीज़ों में गिर गए, उठ गए, वो हो गया, इट्स अ पार्ट ऑफ एजुकेशन, इट्स अ पार्ट ऑफ लर्निंग। गो अहेड, बी हैप्पी, ट्राई टू लर्न एवरी मोमेंट। थैंक यू गुरुजी। गुरुजी, एक लास्ट सवाल था, वो हमने डिस्कस किया था, और ये है कि अगर आपको मौका मिले भारत में या विश्व में किसी के साथ, ऐसे कैसे कौन 2 लोग होंगे जिनके साथ आपको डिनर करने या खाना खाने का मौका मिले और जिनसे आप अभी तक आपकी मुलाकात नहीं हुई है, ऐसे कौन 2 या 3 लोग होंगे जिनके साथ आप बैठ के एक कमरे में मिलना चाहेंगे, डिनर करना चाहेंगे, वार्तालाप करना चाहेंगे? एक्चुअली मैंने कभी इस विषय में सोचा नहीं है ऑनेस्टली, और इतना डीप कभी गया भी नहीं हूँ। मुझे लगता है ये कोई हिपोक्रेट आंसर नहीं है। जी। मुझे ऐसा लगता है कि जब जिसके साथ होता हूँ, जिसके साथ मैं 100% होता हूँ, तो वो 2 पर्सन जिसके साथ मैं बहुत हैप्पी हूँ, वो दोनों सामने बैठे हुए हैं, जिससे मैं बहुत हैप्पी हूँ, बहुत खुश हूँ। So that's a very good answer. Did you understand that? So basically, I'll just very quickly interpret that, and it's a very good answer. I didn't expect that coming. So I asked him if you're going for a dinner, who would be like 2 people on the whole planet that you want to go for dinner with? You have not met probably, you aspire to be. Well, he said that because he lives in the moment, whenever he is with anyone having food or anything, he's 100% there.
and then that's is the happiest moment for him because he's always happy. So as of now, he's with both of us, and he would want to have dinner with both of us because he's like happiest right now at the moment. That's a very- Honestly. and that's an honest answer. That's not, there's no, it's all filter. There's no filter here. He's just giving direct answers today. So I'll wrap up this podcast. It has been a mind-blowing and a very, very, very informative podcast. I didn't expect it to be like that open. Guruji has just unfolded everything and has just said things very bluntly. Elaine, her journey, when I talk to her, it has been a life-changing journey for her. And yeah, thank you so much for tuning in. And we'll watch you again in our next happiness podcast. Thank you very much.